Friends, welcome to my channel. And what was I saying? What was I saying? Today I just went for community prayers और ये इनके जो फादर थे मैं उनको जानती थी तो pretty surprised कि how do I know him? I know him because हम लोग मॉर्निंग में जब मैं प्रेयर्स के लिए जाती थी ये भी होते थे एंड मुझे ना एक्स्ट्रा स्नैक्स बॉक्स मिलता है कहीं कहीं बिकॉज आई एम सच अ फैशन आइकन चाहिए आप कहाँ जाओगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी. Okay, just see my earrings. Liked it? अच्छा मैंने कभी पहने नहीं. First time when I purchased this last month along with my other jewelry. In last month I had purchased. So इसका नंबर कभी नहीं लग रहा था. तो आज मैंने ये पहना and this outfit which I bought it some 5 years ago and I hardly wore it. Maybe second time I wore this. मेरे पास ऐसे ही है. I can put a sale on my clothes. It's like a मॉल शॉपिंग में इतने कपड़े होते हैं ना मार्क्स एंड स्पेंसर्स में वैसे मेरे पास पड़े हुए बिकॉज आई इट्स नॉट दैट आई डोंट गिव फॉर डिस्पाइट ऑफ गिविंग इट टू डोनेशन डिस्पाइट ऑफ गिविंग इट टू अदर रिलेटिव्स इफ सो फिर भी बचे हुए हैं यूनिक पीसेस. And you know, yesterday also there were community prayers and I was not much aware of it, and even if I would know, I would have taken a break. So they were like, where were you? Every single person asked me like, no, जो भी मुझे like, where were you? You did not come, you did not come. मैंने बोला बहुत ज़्यादा प्रेयर कर लिया, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी. Your absence have to be noticed. तुम इतना भी रहते हो कि तुम्हें लोग फिर क्या बोलते हैं ना टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यू जस्ट देयर करके. ऐसा भी नहीं है. मेरा एक प्लस पॉइंट ये कि मैं एक फैशन आइकन हूँ. मतलब एवरी लुक इज डिफरेंट, एवरी सिंगल लुक इज डिफरेंट. आई एम वेरी लाउड एंड प्राउड. जो बोलना है मुंह पे मुंह फट के तरीके फटाफट मुंह पे बोल देती हूँ. सो दैट इज द रीजन. सो पर्सनैलिटी अपनी ऐसी बनाओ कि लोग पीपल शुड लाइक तुम्हारी एब्सेंस मैटर करनी चाहिए. इवन व्हेन आई गो टू द पॉन्ड पार्क जैसे अच्छा यू डिड नॉट कम यस्टरडे. मुझे भी इतना याद नहीं रहता है मैं कितना कहाँ पे. लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड. हाउ इज माय लुक? एक्चुअली यस्टरडे आई वाज प्रैक्टिकली काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड भी थी और मैंने फास्टिंग भी रखा था. आज भी मेरा फास्टिंग था. Just had some snacks, some sandwiches I had, and one nice cupcake was there. Now, without the cream and all that, just one simple cakes. I said okay. तो black cakes देख के ना वो plump और कौन से तो भी cakes देख के मैं this is much better. Simple vanilla, not much sugar. Power dressing matters. पावर ड्रेसिंग मैटर्स. ऐसा नहीं कि तुम महंगे महंगे कपड़े पहनो. दिस आई बॉट इट फ्रॉम बैंगलोर सिटी वेयर आई वॉज पोस्टेड 5 years ago in 2019 or something. So a student of mine chose this. I had already purchased and she said no ma'am you please change all those outfits क्योंकि ये सारे स्टूडेंट ना एक ही मॉल में हैंग अराउंड करते रहते हैं. So she said I will help you to sort out. मैंने बोला I just bought them in a lot, not that I'm going to wear all these things, these kurtas and all, which I said I have plenty of my own, but I just wanted something from this city. She said ma'am I'll help you to get some nice designs. MBA students, I think she was an IT students. Academia. If I were to tell the inside story of academia ना तो forget it. I don't want to criticize or anything. मैंने enough इसके बारे में inside story बताई है कि how do they do it. ऐसे ऐसे teachers जो इतने idiotic, इतने बहनजी, इतना stupid रहते ना, they treated like a government job. उनसे ज़्यादा वो स्टूडेंट्स को पता होता है. इट्स अ फैक्ट. एक फैकल्टी ने तो मेरे मुंह पे बोला मुझसे ज़्यादा तो ये स्टूडेंट्स को पता है. and they are working on some old equipments or something. मैंने बोला फिर इनका then there is a placement in these big companies ना, top level के companies में होता है इनका placement और फिर उनका ट्रेनिंग होता है for next 6 months.
They take students from this particular institute where I was working, which is one of the A grade, prestigious, very very famous institute down south. बने बनाए लोग होते हैं, 80-90% मार्क्स, 95-98% मार्क्स. मजा ले उनको. ग्रुप डिस्कशन में देखो मुंह नहीं खुलता है, इंग्लिश का एक शब्द बराबर से बात नहीं कर सकते. ईमेल तो इनका पता नहीं क्या है, ये डमी रहते ना कुछ कुछ. I saw girls being more smarter than the guys, but in the long run, I think the guys do much better in their career than the females, than the girls. That is my also experience जो मैंने देखा है कि वो स्टडीज में डमी रहते हैं, एवरेज, बट व्हेन इट कम्स टू द करियर लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है. फीमेल्स के कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना. वो शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, रीलोकेशन होता है, फिर उनके मूडी भी होते हैं, नहीं आज ये नहीं, आज मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं कुछ और लाइन चेंज करती हूँ. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. फिर ये माँ बाप जो अपने फीमेल गर्ल के ऊपर इतना स्पेंड करते हैं ना, उनका दिल जले होता है, क्योंकि देन दे ऑल दैट मनी इज गोज टू द हस्बैंड एंड कंपनी, अपने गृहस्थी. और मैं क्या बोलती ना, जो बोलते ना लड़के और लड़के में कोई फर्क नहीं है, हम तो अपनी बेटी को बेटे की तरह पालते हैं. व्हाई कांट यू ट्रीट योर डॉटर लाइक अ डॉटर and be proud of it? Why does your daughter has to be a beta only? Why can't she be a beti and still be proud of it? As I said, I saw the females being far more smarter in academia than the guys. The guys were dummard, एकदम ऐसे dummy थे वो, really. But as I said, long run में career wise the guys are लंबी रेस के घोड़े. We females like to be very detail oriented ना हर चीज में, इसलिए ऐसे कोई केसेस मैंने देखे थे ना, मैंने बोला क्या चल रहा है ये. पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव हो रहे. फैकल्टी वाज सो स्टूपिड ना. मैं तो बोलूँ मैं उनको दरवाजे पे खड़ा भी ना करूँ, इनकी शक्ल भी ना देखूँ, इतनी बेकार बकवास फैकल्टी थी उनकी. बट एज आई सेड, द स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन मेरिट, अपनी मेहनत से उनका लक बाय चांस उनके माँ बाप लाखों खर्च करते हैं, तो ये इट इज बाय डिफॉल्ट दैट दे आर प्लेस्ड इन सच प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन दिस ए ग्रेड इंस्टीट्यूट, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, इसलिए तुम्हारी प्लेसमेंट वो एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में होती है. इट इज अ अंडरस्टैंडिंग और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सो द फैकल्टी इज कचरा लिटरली. फीमेल फैकल्टी तो एकदम, और वो जो मेल फैकल्टी थे वो अंकल पंकल थे रियली. तुम्हें क्या लगता है, तुम बड़े से इंस्टीट्यूट में जाते, लाखों रुपया खर्च करते हैं, ब्रांडेड नेम है, तो यू विल गेट समथिंग बेटर. इट्स जस्ट बाय दीज जॉब्स आर ऑल फिक्स्ड, लाइक फिक्सिंग होता है. इट्स लाइक द MBA जो कैटेगरी होता है, दे आर ऑन द लूजिंग एंड, बिकॉज वो सारे सेल्स के जॉब्स ही होते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग. But the IT people get a better placement. That much I can say. My aura is getting better. Ina, you said the right thing about the water body कि वो वहाँ पे the energies वैसे होते ना अजीब से, weird and strange. Why I'm telling, because जब मैं डांडिया खेलने गई थी ना, one of the days, I think मैंने वीडियो बनाया होगा. Somewhere on the 6th or 7th I had gone, और वो रात के around I reached there at around 9 o'clock I guess, 8:45 9 o'clock. ठीक है, कम्युनिटी प्रेस करके गई थी मैं. ट्रस्ट मी, इतना बोरिंग. थोड़ा सा डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि इनका वो बॉलीवुड के गाने का लाउड स्पीकर था, बट इट वॉज वेरी कोल्ड. एंड आई टोल्ड यू, आई मेट वन गाय ओवर देयर, ही सेड आई वांट टू ज्वाइन. फिर वो गायब भी हो गया अभी, तो ही इज नॉट इन टच एंड ऑल दैट. एक ही बार हमारी बातचीत हुई. He says he comes in the morning and he comes in the evening, no problem. तो he was sitting there and staring, मतलब ये उस साइड पे है ना, तो ये जो प्लेस है ना, रात को अवॉइड करना चाहिए, पार्क्स और ये वाटर बॉडीज एंड ऑल, बिकॉज यू नेवर नो हु हैज एंडेड देयर लाइफ. और टेम्पल भी है वहाँ पर, एंड टेम्पल में लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, वो अपना उतार के फिर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं. सॉरी टू से, बट ये जो हिंदुओं में ना बहुत सारा वो रहता है, अदर रिलीजन में भी होता है, बट इनके अंदर कुछ ज्यादा ही सुपरस्टिशन रहता है, अंधविश्वास बहुत सारा है. वो हर चीज ऐसे उतार के कहीं, एंड इट इज अ वाटर बॉडी, तो ये पानी में फेंकते हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट.
So only in the morning it is purified because of the sunrise, but still you see people acting a little crazy because वो जो energies है ना वो उथल पुथल energies है. Means if you are anxious it will make you more anxious, if you are depressed you will be more depressed, if you are happy you will be very positive. जैसे मैं positive हूँ तो I'll be very happy. When I used to be sad and going to the pond park I used to be more double sad. So the energy doubles, whatever the energies you have currently, and when you're going to a water body वो double हो जाते. That's what I personally felt. जब मैं sad और depressed होती थी and I used to go at around 5:30 5:45 in the month of April. तो I realized one thing, मार्च अप्रैल में मैं बहुत जल्दी जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी तभी, तो उठ के मैं चली जाती थी. I've reached there at 5 o'clock, I've reached there at 5:30, 5:45, I've reached before 6 also, and I've seen the energies, like you'll be more sad, you'll feel more sad after sunrise, but still you'll find some crazy people walking with very rotten expressions. इसके मैंने बोला कि if you have sad energies you'll be more depressed, but if you're happy it will be doubled, and if you're facing the sun, because you don't know that pond must be having so much of history because it's there from so many years, right? Like my earrings now, cute. Fasting. अभी मैंने थोड़े से स्नैक्स खा लिए, सैंडविच, चटनी सैंडविच, अमूल बटर एंड चटनी, ग्रीन चटनी सैंडविच, एंड वन कप केक माइनस द क्रीम एंड ऑल दैट, सिंपल मावा केक जिसे बोलते हैं वो, मे बी इट्स फ्रॉम मेवांस. And I think there was something else also. मुझे उसका नाम नहीं पता. It looked like karanji. Maybe it is non-veg, but I ate it. Because I'm so much veg ना कि मुझे non-veg भी veg ही लगता है, vegetables ही लगते हैं. करंजी की तरह कुछ तो था वो, पता नहीं क्या. Of course, I know a lot of people this side. I know so many people. As I said, I used to be very active with so many activities, charitable activities, and this and that. So a lot of people know me. Even if I'm in isolation for 5-6 years and then I come out of it, I'll still have people recognizing me, asking me questions. Where were you? What you're not there. So that's it. अपने कर्म करना चाहिए. That's what I personally feel. Your karma should be your priority. And तभी मैं ऐसे भद्दे कपड़े पहनती थी. And I used to be very fat also. I used to be almost nearing 70 kgs. मैं कुछ भी रद्दड़ कपड़े पहनती थी. तभी मेरे माइंड में ये सारा नहीं था, because I had just come down to my home and I used to not keep well also, but still I used to walk 7 to 10 kilometers every day. मेरा walking बहुत ज़्यादा रहता था. Despite I was 70 kgs, I was very active. I was seen everywhere. वो मूड नहीं था उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसे फैंसी कपड़े पहन के ऐसे. I'll tell you ना, मैं योगा भी जाती ना, घर के कपड़ों में जाती थी seriously. Then I see all those aunties wearing इस्त्री किए हुए कुर्ते and all that. मैंने बोला that is not important. Important part is how you do your yoga. And वो भी नीचे जमीन पे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इतनी धूल मिट्टी होती थी. Seriously, मैंने बोला ये these aunties are such an एड़ा person. It's so dirty. But I used to go for the love of yoga and exercise. मैंने बोला the more important thing is your exercise, not your clothes. ये इस्त्री किया हुआ कौन देख रहा है, और ऐसे तुम लोग के शरीर ऐसे है कि it doesn't make any difference. सोनी की नखरे सोनी लगते मैनू, सोनी की नखरे सोनी लगते. नजर न लग जाए किसी की राह में, संभाल रख लो तुझे निगाहों में, तू खो न जाए. Oh my love. This is of the 60s movie, Mala Sinha and Biswajit. A Night in London, something the name is, and Rafi Saab. क्या गाते थे. मतलब उन ऐसे कलाकार मुझे लगता है ना, वो अभी 100 साल में या 200 साल में एक बार पैदा होते हैं. वो साहब, रफ़ी साहब, उतनी
रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो रेंज है ना, वो मराठी गाने भी गाते थे लिटरली. आई रिमेम्बर ही sang this song. Even Hemant Kumar used to sing Marathi songs. Which song did he sing? Very famous. वो हर बार वो भजन गणेश कोई भी फेस्टिवल हो, ये गाना वो बजाते ही है. And what a dictation, what range he had. What song he sang? देव हा आपल्या अंतरी मंदिरी. Oh, you should see Rafi Saab singing in Marathi. Even Hemant Kumar, despite being a Bengali, used to have such a good hold over Marathi. Dol dol मी डोलकर दल्याचा राजा means fisherman. He and Lata had sang this song. Mahendra Kapoor used to sing all these naughty songs of Dada Kodke in Marathi. ढगाला लागली कळाई sang by Mahendra Kapoor. You know, I used to like these 70s का एक singer Yashudas. He was a Malayali. He could not speak Hindi, but he had a fabulous voice. सुनैना तेरी गाना और मैं तुम्हें देखते हुए. बॉलीवुड में 50s एंड 60s, ऑलमोस्ट 70s में एक ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे. एक बड़ा साहब करके स्टोर है विच इज इन बैंड्रा. ओके, लिंकिंग रोड में है वो बड़ा साहब. एंड इस बानू अताया करके वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होती थी. मतलब पूरे वो ही डिजाइन करती थी बानू अताया. कॉस्ट्यूम मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तुम्हें हर किसी को स्टाइल आइकन बनने की जरूरत नहीं. तुम्हारी पर्सनालिटी हटके है ना कि लोग तुम्हें रिकॉल वैल्यू रखते हैं. एंड इफ यू ड्रेस अप वेल देन 4 चांद लग जाते हैं. मेरे एनिमीज तो जल बुन के राख हो रहे हैं. हाउ डेयर शी. और वो ना एंटिसिपेशन होता है, विल शांति कम टुडे. इसी कमिंग. अरे 10 मिनट होने को है, अभी तक नहीं आई. मतलब आ रही है कि नहीं, आज कौन से कपड़े पहने हैं, आज कौन से इयररिंग पहना है. टॉक ऑफ द टाउन. ला 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 ला. You know what these Bollywood people do? They do a lot of mixing. अभी कोली गीत का और वो दामुल्या लगण्याक बताए. रिमेम्बर दैट बॉबी में वो गाना था ना, दामुल्या लगनक वेता मक साहिबा वाट कळना. दिस सॉन्ग इज गोवन मराठी. दिस इज कम्प्लीटली गोवन मराठी, कोंकणी, गोवा से है ये गाना. जो इन्होंने वो ईस्ट इंडियन के इसमें चेप दिया वो वाला. So they used to do a lot of mix and match, जो मतलब कुछ भी कहीं पर भी फिट करते थे. People don't bother because it's just a movie, right? दामुल्या लगनक वेता मक साहिबा वाट कळना. Now it's a Marathi mix, Marathi and Konkani mix kind of a thing, and it is from Goa. Goa was Portuguese rule, na, so is Daman. Daman is Gujarati type, na, but it is like Gujarat ka Goa type. I like Daman also. Very laid back, very nice. वहाँ बहुत सारे पारसीज हैं, their restaurants are there. अगर तुम लोग को मौका मिलता है, if anybody is from आसपास, तो Daman is also a very good destination during the winters. Okay, darlings, now I'll keep. Okay, bye. Just wanted to show you that outfit of that.